نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي ربنا زدنا علما ربنا زدنا علما ربنا زدنا علما ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن عربک گرامر کورس میں نور ہدایت کی جانب سے شروع کیا گیا ہے۔ آپ سب کو خوش آمدید، ویلکم آل۔ جیسا کہ لیکچر 1 ہمارا ڈیلیور ہو چکا ہے اور آپ لوگ اس پہ ورکنگ بھی کر چکے ہیں، ماشاءاللہ آپ سب نے نوٹس بنائے۔ آج ہمارا لیکچر 2 سٹارٹ ہوگا انشاءاللہ۔ تو لیکچر 1 کو تھوڑا سا میں آپ کو ایک بریفلی اس کا چھوٹا سا گو تھرو کرتی ہوں آپ کے ساتھ، کہ ہم نے سب سے پہلے دیکھا کہ عربی سے ہمارا جو انٹروڈکشن ہوا تھا اس پہ ہم نے حروف تہجی کو دیکھا، اس کے بعد کلمے کے اقسام، اور کلمے کے اقسام میں اسم فعل حرف کو ہم نے پڑھا۔ اسم فعل حرف میں سے ہم نے اسم کو چنا ہے، یہ ہمارا ٹاپک ہے، ابھی یہ چلے گا انشاءاللہ، اور حرف کو ہم ساتھ ساتھ لے کر چلیں گے اور فعل کو اس کے بعد پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اسم میں ہم نے دیکھا کہ اسم کے تعریف دیکھی، پھر ہم نے اسم کے اس کی پہچان دیکھی، اس کی بنیادی علامتیں دیکھیں، اسم کے پہلو دیکھے۔ تو اسم کے 4 پہلو ہیں جنہیں ہمیں یاد رکھنا ہے، جنہیں ہمیں سمجھنا ہے، جو کہ ایک اسم کی بنیاد ہوتے ہیں، انہیں اسپیکٹس آف ناؤن بھی کہا جاتا ہے۔ سب سے پہلے ہے جنس، جینڈر، جس میں مذکر اور مؤنث آتا ہے۔ یہ آپ لوگ پڑھ چکی ہیں، لیکچر 1 میں ہم نے اس کو بڑا اچھی طرح سے دیکھا، سمجھا ایگزامپلس کے ساتھ۔ اس کے بعد ہے عدد، نمبر، جس میں واحد، مثنیٰ اور جمع ہے۔ یہ ہمارا آج کا لیکچر ہے انشاءاللہ۔ وسعت، کیپیسٹی، جس میں معرفہ اور نکرہ آ جاتے ہیں، اور اس کے بعد اعراب، رفع نصب جر، یہ آپ کا اسٹیٹس کا۔ جنس پڑھ لیا ہے، آج عدد کا لیکچر ہوگا انشاءاللہ، اور وسعت اور اعراب ہم اگلے لیکچرز میں انشاءاللہ اس کو پڑھیں گے۔ تو آج کا لیکچر سٹارٹ کرتے ہیں ہم۔ عدد لیکچر، اسم کے جو ہم نے پڑھا جنس آپ کی ہو گئی ہے، اب عدد نمبرز کو دیکھ لیتے ہیں۔ عدد اصل میں ہے کیا؟ کسی بھی اسم کی تعداد بتانے کے لیے، اس کی تعداد کو ظاہر کرنے کے لیے، جو ہم کسی بھی اس کو ظاہر کرتے ہیں، اسم اسے کسی اسم سے ہی ظاہر کریں گے نا کہ یہ اس کی تعداد کیا ہے، تو اسے عدد کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اردو اور انگلش میں عدد کے اعتبار سے اسم 2 طرح کا ہوتا ہے۔ اس کی واحد کے لیے، ایک کے لیے واحد یعنی سنگولر، اور 2 سے زیادہ کے لیے جو آئے گا اسے جمع کر ہم لے کے جاتے ہیں یا پلورل کہا جاتا ہے۔ واحد کو ہم انگلش میں سنگولر کہیں گے، اور جو 2 سے زیادہ کے لیے استعمال ہوگا اسے جمع کو پلورل کہیں گے۔ لیکن جب ہم عربی میں دیکھتے ہیں تو عربی میں واحد اور جمع کے علاوہ اسم کی تعداد کو ظاہر کرنے کے لیے، جہاں پر 2 اسم آ جائیں ان کی تعداد کو ظاہر کرنے کے لیے مثنیٰ کا صیغہ بنایا گیا ہے۔ ایک عدد جو الگ سے عدد کا صیغہ ہے مثنیٰ کہلاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کو سمپل آپ اس طرح بھی لے لیں کہ عربی میں واحد اور جمع کے علاوہ 2 کے لیے ایک الگ سے عدد بنایا گیا ہے جسے مثنیٰ کہتے ہیں۔ یعنی اب ہم اس اعتبار سے دیکھیں تو عربی میں اسم جو ہے عدد کے اعتبار سے 3 طرح کا ہوگا، واحد، مثنیٰ اور جمع۔ یہ نیچے آپ کو نظر آ رہا ہے لکھا ہوا۔ تو واحد آپ کا ہو گیا 1 کے لیے سنگولر، مثنیٰ 2 کے لیے ڈوئل، اور جمع 2 سے زیادہ کے لیے پلورل، ٹھیک ہے۔ یہ سنگل کی جگہ سنگولر کر لیجئے گا آپ لوگ نوٹس بناتے ہوئے پلیز۔ اب ہم عدد کو آگے ڈیٹیل سے پڑھتے ہیں۔ واحد، 1 کے لیے سنگولر، ایسا اسم جو 1 کو ظاہر کرتا ہے، یعنی وہ کسی بھی چیز کی جب ہم عدد بتائیں گے اس کا جب وہ 1 ہے، سنگل ہے، تو وہ اس طرح سے آئے گا، قلم، 1 پین۔ یہ بات میں آپ کو پچھلے لیکچر میں بتا چکی تھی، اور آپ نے اس کو یاد رکھنا ہے کہ جب بھی نکرہ اسم آئے گا تو اس کا ترجمہ کوئی یا ایک کے ساتھ کیا جاتا ہے، لیکن یہاں پر کیونکہ ہم عدد کو پڑھ رہے ہیں تو ادھر ہم ترجمہ 1 کے ساتھ کریں گے، ٹھیک ہے۔ قلم، 1 پین۔
ट्रांसलेशन में साथ मेंशन कर रही हूँ, ठीक है। जो स्टूडेंट्स थोड़ा सा जिन्हें उर्दू में प्रॉब्लम है वो इसको फॉलो कर सकते हैं साथ। आप है मुसन्ना, दो के लिए डूअल, ऐसा इसम जो दो चीजों को जाहिर करता है। अब जब दो की बारी आई, हमने पढ़ा था अभी, आपको मैंने बताया कि अरबी में जब किसी भी इसम को, किसी भी चीज की हमने क्वांटिटी दो में बतानी है, किसी भी चीज जो उसको हमने दो में जाहिर करना है कि ये दो है, दो पेन है, तो हम उसे किस तरह से लिखेंगे? कलमानी, आनी, मुसन्ना की जो साउंड आएगी आनी के साथ आएगी, तो इसको उर्दू में तर्जमा करेंगे दो पेन, ठीक है। जमा को देख लेते हैं। जमा दो से ज्यादा के लिए। प्लूरल ऐसा इसम जो दो से ज्यादा चीजों को जाहिर करता है। अकलामुन दो से ज्यादा पेन। यहाँ सिर्फ मैंने लिखने में आपको ब्रीफ करने के लिए, आपको कंफ्यूजन ना हो, यहाँ पे लिखा है दो से ज्यादा पेन, लेकिन जब आप बात कर रही होंगी आप कहेंगी अकलामुन, तो ये हमें ये वर्ड ही, ये इसम यही शो कर रहा है कि यहाँ पे ज्यादा तादाद में बात की जा रही है, ठीक है। ना तो वो पेन एक है ना वो दो है, वो दो से ज्यादा है। इसको आपने जहन में रखना। तो अदद, अरबी में अदद तीन तरह से आ जाएगा, वाहिद, मुसन्ना और जमा, ठीक है। जब हमारे पास जो कलमुन है, ठीक है, ये एक पेन, नकरा इसम जब भी आपके सामने आएगा वो वाहिद ही होगा। इस बात को आप लिख लीजिए कि नकरा इसम जब भी आपके सामने आएगा वो वाहिद ही होगा। अब हम इसके एग्जाम्पल से इसको समझते हैं, कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं हम इसको, ठीक। बाबुन, ये आपके सामने है। इसको हम सबसे पहले देखेंगे, हमने क्योंकि इसम पढ़ा है और हम इसम पढ़ रहे हैं तो हम देखेंगे क्या ये इसम है, फेल है या हर्फ है। कलमे के इकसाम में से इसको पहले देखेंगे। तो ये इसम है। अब मुझे कैसे पता चला ये इसम है? क्योंकि मैंने इसम की पहचान में पढ़ा था, इसम की बुनियादी अलामतों में देखा था कि इसम के आखिर में तनवीन आएगी। तो बाबुल इसम हो गया। पहचान क्या मैंने इसकी देखी कि इसके आखिर में तनवीन आ रही है, ये इसकी पहचान है। अब ये वाहिद है, इसको मैंने कैसे पहचाना? इस तरह से कि जब भी नकरा इसम होगा वो वाहिद होगा, वो एक होगा, वो सिंगुलर होगा। एक दरवाजा। अच्छा, अब हमने उसको देख लिया ये इसम है। हमने इसका इसम की एक दूसरी चीज पढ़ ली थी साथ में, जो सबसे पहला हमने उसका पढ़ा था, पहलू एक्सपेक्ट पढ़ा था, वो था जिन्स यानी जेंडर। अब हमने देखना है ये मुजक्कर है या मोनस, ठीक है। अ, हम पहले मोनस में चलते हैं, देखते हैं कि ये क्या मोनस है, क्या इसका कोई हकीकी मुजक्कर मौजूद है? नहीं, इसका कोई हकीकी मुजक्कर मौजूद नहीं है, क्योंकि ये नॉन लिविंग थिंग्स है, ये गैर हकीकी है, ये नॉन लिविंग में आता है। अच्छा, अब हमने इस मोनस की जो दूसरी उसकी पहचान थी वो देखनी है कि क्या ये अलामती मोनस में से है। नहीं, इसके पीछे तो कोई अलामत भी इसके आगे नजर नहीं आ रही, ना इसके आखिर में गोलता आ रही है तनवीन के साथ, ना इसके आखिर में या खड़ी जबर के साथ आ रही है जिसे या मकसूरा बोलते हैं, ना इसके आखिर में अलिफ हमजा पेश के साथ आ रहा है जिसे अलिफ ममदूदा कहा जाता है। इसमें अलामती मोनस की कोई भी पहचान नहीं है, तो ये अलामती मोनस में से भी नहीं है, ये भी क्रॉस हो गया। अच्छा, अब हम आगे देखते हैं मोनस की तीसरी किस्म जो कि समाई मोनस कहलाती है। तो क्या ये समाई मोनस में से है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि हमने उसकी एक पूरी हमने एक उसकी स्लाइड स्टडी की थी, जो मैंने आपके साथ शेयर भी की थी, हमने उसको गो थ्रू किया अपने जहन में। नहीं, ये कहीं से भी उस लिस्ट में मौजूद नहीं था बाबुन। तो फिर हमने इसको कहा कि ये मुजक्कर इसम है, क्योंकि अरबी में 90% अस्मा मुजक्कर है, ठीक है। एक दरवाजा, अब इसकी ट्रांसलेशन भी आप देख लीजिए, अडोर, ठीक है। अगला इसम देखते हैं, आगे चलते हैं। यदुन, यदुन एक हाथ। पहले हमने देखा ये इसम है, हमने इसकी तनवीन से पहचान लिया। अब हम इसकी जिन्स देखते हैं, जेंडर। तो हम देखते हैं क्या इसका कोई मुजक्कर मौजूद क्या ये मुजक्कर की कैटेगरी में है? नहीं, ये मुजक्कर नहीं हो सकता, क्योंकि हमने पढ़ा कि जो इसके मायने से आप देख रहे हैं ना, हाथ तो हाथ दो होते हैं, तो ये समाई मोनस में से हमें सीधा सीधा पता चल गया, क्योंकि जो पेयर्ड बॉडी पार्ट्स हैं आपके,
जो आपके जिस्म के आजाद दो हैं, जैसे दो हाथ, दो पाँव, दो टांगें, दो आंखें, दो कान, वो समाई मोनस की कैटेगरी में आते हैं। तो यदुन समाई मोनस में से है। और ये यहाँ पे इसकी तर्जमा लिखा हुआ है, एक हाथ। ठीक है, अगला इसम देखते हैं, नाफिजातुन। अब ये क्या है? ये इसम है क्योंकि इसके आखिर में गोल ता तनवीन के साथ आ रही है। इसम की पहचान में ये भी पहचान थी कि इसम के आखिर में गोल ता तनवीन के साथ मिलेगी। अब इसकी जिन्स देखेंगे तो हम इसको किस कैटेगरी में लेके जाएंगे? मुजक्कर तो ये हो नहीं सकता, तो ये इसके आखिर में गोलता भी आ रही है, तनवीन भी है, तो ये हमें बता रही है कि ये अलामती मोनस है। अब इसको हमने देख लिया कि इसम है, ये अलामती मोनस में से है। अब इसका तर्जुमा देखते हैं, इसकी ट्रांसलेशन है एक खिड़की, अ विंडो। ठीक है, आगे चलते हैं। तालिबुन, तालिबुन क्या है? इसका तर्जुमा आप पहले समझ लें। इसका तर्जुमा है एक तालिब इल्म। ठीक है, तो ये तो बिल्कुल हमें जाहिर हो रहा है कि ये मुजक्कर है। ठीक है, इसके स्टूडेंट। अगला हम देखते हैं मुस्लिमुन। मुस्लिमुन भी इसम है, तनवीन बता रही है। और जैसा कि हमें जाहिर हो रहा है कि ये मुजक्कर है। ठीक है, इसकी मोनस भी मौजूद होती है, तो इसका तर्जुमा है एक फर्मा बरदारी करने वाला। ठीक है, एनओबीडी। ये थे आपके वाहिद अस्मा। एक छोटा सा आपको मैंने शॉर्ट सा ये क्लिप मतलब स्लाइड दिखाई है, इसको आप समझिए। इस क्लास प्रैक्टिस में आपको इसकी मजीद चीजें वाजे होंगी इंशाल्लाह। बस आपने ये याद रखना है कि जितने वाहिद अस्मा है, नकीरा इसम आएंगे वो वाहिद होते हैं। ठीक है, इसके बाद हम आगे चलते हैं। आगे है हमारा टॉपिक कि हम मुसन्ना को जो हमने पढ़ना है। ठीक है, आज के जो दो मेन टॉपिक हैं, वाहिद और मुसन्ना को आज कवर करेंगे। तो आप हम मुसन्ना को देखते हैं। मुसन्ना यानी दो के लिए डुअल। अब क्या है, अरबी में दो के लिए एक अलग से अदद बनाया गया है जिसे मुसन्ना कहते हैं, यानी डुअल। अब इसको बनाने का एक तरीका है, ये एक पैटर्न पे बनते हैं। ठीक है, नकरा इसम तो वो थे ना जो कि ओरिजिनली एक इसम होता है वैसे। ठीक है, लेकिन मुसन्ना को बनाया जाता है एक थ्रू प्रॉपर वे के साथ चलते हैं, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। मैं आपको स्टेप्स के साथ ही समझाऊंगी इंशाल्लाह। तो हम उनको स्टेप्स को देखते हैं कि हमने इसको कैसे बनाना है। नंबर एक, वाहिद इसम के आखिर में आखिरी हर्फ को जबर देंगे। ठीक है, वाहिद इसम के आखिरी हर्फ को जबर देंगे। नंबर टू, इसके बाद अलिफ नून जेर नी का इजाफा कर देंगे। इन दोनों स्टेप में जो मैंने रेड से हाईलाइट किया, इसके दो स्टेप्स हम इसको याद रख लेंगे कि वाहिद इसम के आखिर हर्फ को हम जबर देंगे, और नंबर टू में इसके बाद अलिफ नून जेर नी का इजाफा करेंगे। ये जो रेड से हाईलाइट किए गए हैं, ताकि आपको इनको याद रहे, इन स्टेप्स को याद रखना है, हमने स्टेप बाय स्टेप इसको लेकर चलना है। तो आपके सामने इसम आ रहा है मुस्लिमुन, इसके आखिर में आपको तनवीन नजर आ रही है, और ये जो है मुजक्कर इसम है। ठीक है, अब हम इसके बाद देखें, ये चीजें हमने इसमें पहचाननी है कि ये इसम फेल हर्फ में से क्या है, ये इसम है। ठीक है, पहचान क्या हमने देखी कि तनवीन है, और जिन्स क्या है, ये मुजक्कर है। चलो, ये स्टेप भी हमारा कंप्लीट हो गया, हमने इसको स्टडी कर लिया कि ये कैसा हिस्सा है। अब हम इसको बनाने के लिए देखते हैं, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। पहला स्टेप क्या है, मुस्लिमुन। पहला, उसके बाद हमने क्या करना है कि आखिरी हर्फ को जबर देंगे। ये आपके पास पहले सिंपल इसम आया मुस्लिमुन, जो कि वाहिद था, एक फर्मा बरदारी करने वाला। तो अब हमने क्योंकि इसकी मुसन्ना बनानी है, तो हमने उसका पहला स्टेप क्या करना है कि आखिरी हर्फ को जबर देंगे, तो बन गया मुस्लिमा। ठीक है, उसके लिए हमें तनवीन ड्रॉप करनी पड़ेगी। इसके बाद हमने अलिफ नून जेर नी का इजाफा करना है, तो ये आपका बन गया मुस्लिमानी। मैंने आपको स्टार्ट में बताया कि मुसन्ना की आवाज होगी आनी। आप किसी भी मुसन्ना इसम को पहचानेंगे आनी की आवाज के साथ।
फाइनल हमारे पास इसकी आएगी शक्ल, वो होगी मुस्लिमानी, दो फर्मा बरदारी करने वाले। अब इसके बाद हम इसकी मजीद एग्जांपल्स देखते हैं। अब हम देखते हैं मुसन्ना के एग्जांपल्स किस तरह से हैं, इनको हम समझते हैं कि मुसन्ना का जो जब भी किसी इसम को मुसन्ना में कन्वर्ट किया जाता है तो उसको हम कैसे करेंगे। मुस्लिमातुन, ये आपके पास मुअन्नस इसम है, इसको हमने कैसे पहचाना कि इसके आखिर में गोल ता आ रही है तनवीन के साथ। और हमने पिछले लेक्चर में इसको बनाना सीखा था कि किसी भी मुज़क्कर इसम को मुअन्नस इसम कैसे बनाया जाता है, तो उस इसम के आखिर में गोल ता को तनवीन के साथ लगाकर उसकी मुअन्नस बनाई जाती है। इसका मुज़क्कर है मुस्लिमुन, जो कि अभी हमने पीछे देखा, और उसकी हमने मुसन्ना बनाई थी मुस्लिमानी। तो ये है मुस्लिमातुन, उसकी मुअन्नस है। गोलता इसकी पहचान हमें बता रही है कि ये मुअन्नस का सीगा है। अब इसको हमने स्टेप 1 क्या करना है कि आखिरी हर्फ पर हमने जबर लगा दी। और जो गोलता वाले हैं इनकी जो मुसन्ना बनाने का तरीका है, इसको जरा गौर से समझिएगा। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या हुआ कि जो ये गोल ता थी ये लंबी ता में चेंज हो गई। ठीक है, इस गोल ता को हमने लंबी ता में चेंज कर देना है। जबर बरकरार रहेगी इस पर, वो बिल्कुल इसी तरह रहेगी, चेंज नहीं होगी। नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या किया कि हमने जो उसका सेकंड स्टेप था अलिफ नून जेर नी का इजाफा करना है। ठीक है, तो फाइनल हमारे पास रिजल्ट आया मुस्लिमतानी। अच्छा, मुजक्कर की आवाज आनी के साथ आएगी जैसे मुस्लिमानी, और मोन्नस की आवाज आपको आएगी तानी के साथ, मुस्लिमतानी। ठीक है, दो फर्मा बरदार करने वालियां। ठीक है, इसकी इस तरह से आप ट्रांसलेशन करेंगे। सिर्फ इसमें थोड़ा सा ये चेंज आया कि हमने जो गोल ता थी उसको लंबी ता में चेंज कर दिया, बाकी दो स्टेप वैसे ही थे कि जबर आएगी आखिरी हर्फ पर, और अलिफ नून से नी का इजाफा भी वैसे ही था। वलादुन, अच्छा, तनवीन बता रही है इसम है, ये एक मुजक्कर इसम है क्योंकि इसमें इसमें मोनस की कोई अलामत नहीं पाई जा रही। ठीक है, ना इसमें गोलता आ रही है ना बाकी कोई अलामत है, ना ये समाई में से है। अब इसका हम मुसन्ना कैसे बनाएंगे, आखिरी हर्फ पर हमने जबर लगाई, उसके बाद हमने इसमें अलिफ नून से नी का इजाफा कर दिया। नेक्स्ट स्टेप में वलादानी। ठीक है, तो फाइनल प्रोडक्ट क्या है आपके पास, वलादानी, दो लड़के, टू बॉयज। यहाँ तक आई होप आपको ये समझ आ रही होगी कि हमने इसको कैसे लेके चलना है। इसकी नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, बिनतुन। अच्छा, बिनतुन मोनस इसम है, इसका मुज़क्कर वलादुन है। ठीक है, इसकी अब हम बनाते हैं मुसन्ना बिनता। हमने आखिरी हर्फ पर जबर लगाई, उसके बाद अलिफ नून से नी का इजाफा करेंगे, तो बिनतानी। फाइनल क्या आ गया आपके पास, बिनतानी, दो लड़कियां, टू गर्ल्स। साउंड हमने याद रखनी है, मुजक्कर के लिए आनी, मोनस के लिए तानी। आगे देखते हैं एग्जाम्पल, मुनाफिकुन, ये भी मुजक्कर इसम है और इसके बाद हमने आखिरी हर्फ पर जबर लगाई, मुनाफिका, फिर इसके अलिफ नून से नी का इजाफा करेंगे। सॉरी, थोड़ा सा स्लिप हो गया पीछे, मुनाफिकानी। ठीक है, मुनाफिकानी, दो मुनाफिकत करने वाले। अब देखें ये भी मुजक्कर इसम था, इसकी साउंड आनी आखिर में आ रही है। अब इसी की मोनस को समझते हैं, मुनाफिकतुन, तनवीन दो पेश के साथ हमें बता रही है कि ये मोनस का सीगा है। ठीक है, अब इसका भी वैसे ही हम स्टेप्स लेंगे उसी तरह से जैसे हमने ऊपर मुस्लिमात उनके लिए लिए थे। तो इसको देख लें, मुनाफिकाता। ठीक है, गोल ता पर हमने जबर लगा दी, अगला स्टेप वही गोल ता लंबी ता में तब्दील हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, तो मुनाफिकतानी। ठीक है, तो फाइनल आ गया मुनाफिकतानी।
बिल्कुल। अब ये देखिए मोनस की आपकी साउंड आ रही है ना, तानी, तो बस ये आपने पहचान याद रखनी है। आगे देखते हैं, सहराउ। आपके पास किसी टाइम इस तरह से ये हमारी अलामती मोनस में से है सहराउ, इस तरह के अगर कुछ इसम नजर आ जाए आपको, तो उनकी मुसन्ना कैसे बनानी है, उनके स्टेप्स को फॉलो कीजिए। इस सूरत में हमजा को वाव में तब्दील कर देंगे, ये जो हमजा है ये वाव में चेंज हो जाएगी। अगला स्टेप क्या है इसका, कि इसी वाव पर जबर लगा देंगे, ठीक है। उसके बाद अलिफ नून ज़ेर का इजाफा कर देंगे। और क्योंकि जबर लगाना और अलिफ नून ज़ेर का इजाफा करना ये तो मुसन्ना के बेसिक स्टेप्स हैं, किसी भी इसम को मुसन्ना में चेंज करने के लिए इन दो स्टेप्स का आपने जरूर करना है, कि जबर लगेगी आखिरी हर्फ पर और अलिफ नून ज़ेर का इजाफा करेंगे। अब सहराऊ का मुसन्ना कैसे बनेगा इसको देख लीजिए, सहराऊ। हमने इस हमजा को वाव में चेंज कर देना है इस तरह से। अब इसी वाव पर जबर लगाएंगे, सहरावा, और फाइनल क्या बनेगा, सहरावानी, ठीक है। ये आपका मुसन्ना का सीगा तैयार हो गया इसका। ये वाले अस्मा आपको बहुत बहुत कम मिलेंगे, ये कोई बहुत ज्यादा इनकी तादाद नहीं है। याद रखने की बातें आखिर में आप इनको याद रखें, मैं आपको कुछ बता रही हूँ कि इनको आप नोट कर लीजिएगा। लफ्ज़ जलाला अल्लाह, ये अल्लाह ताला का जाती नाम है, इसकी मुसन्ना नहीं बनेगी। इसके अलावा दुनिया की हर चीज की, मर्दों के नाम, औरतों के नाम, इन सब की मुसन्ना बन सकती है। आ, जैसे आप अगर कहीं किसी जगह पर दो लड़के बैठे हैं, दोनों का नाम मोहम्मद है, तो उनकी मुसन्ना बनेगी मोहम्मदानी, ठीक है। और अल्लाह ताला के जो बाकी सिफाती नाम है उनकी भी मुसन्ना बन सकती है सिवाय जाती नाम के उनके। जैसे रहमानुल, रहमानानी, रहीमुल, रहीमानी, इस तरह से आ, बाकी दुनिया के जितने अस्मा हैं आप उनके मुसन्ना, उनके डुअल बना सकते हैं, ठीक है, उनके डुअल बन जाएंगे। स्टेप्स क्या होंगे, यही होंगे कि आखिरी हर्फ पर हरकत आएगी और उसके बाद आपको अलिफ नून से नी का इजाफा करना है। एक और बात कि जितने नकीरा इसम हैं वो हमेशा वाहिद होते हैं, ये आपने बात याद रखनी है, और उनका आप एक के साथ तर्जुमा करेंगे। जब आप अदद की बात करेंगे तो एक जरूर साथ रखेगा, एक लड़का, एक लड़की, एक मुसलमान, एक काफिर, एक जन्नत, ठीक है। इस तरह से वो सारे आप उसको एक के साथ रखें, क्योंकि हम वहां पे अदद की बात कर रहे हैं। और इसके बाद जो है आपने इनकी साउंड याद रखनी है, इनकी आवाज़ याद रखनी है, इनकी पहचान याद रखनी है, कि जब आनी की आवाज़ आएगी तो आपका मुज़क्कर का इसम होगा, और तानी की आवाज़ के साथ आपके पास मुअन्नस होगा। ये आपका आज का लेक्चर था, और यहाँ पे हम अपने लेक्चर को कंप्लीट करते हैं। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।